इस वीडियो में हम बात करेंगे 11th अगस्त करंट अफेयर्स की। इन दिस सीरीज वी आर डिस्कसिंग द डेली करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस, फ्रॉम डाउन टू अर्थ and from the like the PIB and the others various sources of the गवर्नमेंट। तो वहाँ से हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। सो इट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेंड दिस सेशन। आपका करंट अफेयर सारा यहीं से कवर हो जाएगा। सून वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट अनदर इनिशिएटिव, सो स्टे ट्यून्ड। तो आज का फर्स्ट जो न्यूज है, वर्ल्ड फूड प्राइसेस आर इंक्रीजेज एट द 2-year हाई ऑन राइजिंग द मीट एंड एडिबल ऑयल। तो अकॉर्डिंग टू द FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड के फूड प्राइसेस हैं वो 2 years के सबसे ज़्यादा हो गए हैं। जो FAO है, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। दिस बिकम इम्पोर्टेंट। अगर तो आप जानते हैं किस किस एरिया में फूड प्राइसेस ज़्यादा हुए हैं, FAO के बारे में जानते, चलिए देखते हैं। अबाउट द FAO प्राइस इंडेक्स के बारे में देखें तो ये मेजर किया जाता है ऑन द मंथली बेसिस चेंज इन द फूड बास्केट। monthly basis change in the food basket we are looking at it, and there are the 5 commodity जो मेजर की जाती है। the first is cereals, second is the vegetable, third is the dairy, fourth is meat, and fifth is sugar. These 5 commodity are measured on the monthly basis, and the base year for this is 2014 to 2016 is the base year for the FAO Agriculture Food Price Index। चलिए जानते हैं FAO के बारे में। FAO is a body of the United Nations, so that you should remember, and already the question has been asked on this Food and Agriculture Organization. And the main goal of this organization, the food security, as the name suggests, Food and Agriculture Organization, the main is function the food security. Total member are the 195 members. Out of 195 members, one is the European Union, and the other body like the World Food Program, International Fund for Agriculture Developments are also the part of the FAO। इसके साथ देखते हैं पब्लिश द रिपोर्ट्स लाइक द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट्स, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट रिलीज करता है। सोफिया रिपोर्ट रिलीज करता है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरी एक्वाकल्चर, it's also released a SOPO report, that's State of Agriculture Commodity Markets, and the Food Security and Nutrition reports. These reports that are released by the FAO are also an important report for your examination. It's headquartered in the Rome, Italy में इसका headquarter है। तो चलिए जानते हैं क्वेश्चन के बारे में। Try to answer this question. Consider the following statement regarding the FAO. It's released by United Nations Food and Agriculture Organization on a monthly basis. Measure the monthly changes in the international prices of basket of foods, commodity including cereals, vegetable oil, dairy, meat, and sugar. Yes, this is also right. The index is calculated in nominal terms, not adjusting the inflation. India is a member of FAO and contribute data of the index. Yes, all the answer is correct. D answer will be the 1, 2, 3, and 4. That's the basic information about the FAO and the FAO report. So the answer of this question is D. Now let's move to the next topic. India's Asian official begin fresh round of talks. तो इंडिया एंड एशियन नेशंस के बीच में दोबारा से टॉक्स होना शुरू हुआ है रिलेटेड टू द ट्रेड, related to the trades and related to the goods agreement on trades, related to the goods agreement। अगर हम देखते हैं जैसे ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात करें, AITGA, एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड एग्रीमेंट, एशिया इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट की बात हो रही है। चलिए जानते हैं एशियन मेंबर्स के बारे में। टोटल मेंबर्स आर लाइक द म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस, ब्रुनई। दीज आर द 10 मेंबर्स ऑफ द एशियंस। एंड दैट्स, इस पे भी क्वेश्चन पहले आ चुका है, कौन सा कंट्री किसको बाउंड्री करता है। तो यू हैव टू लुक ऑन द मैप विच कंट्री शेयर द बाउंड्री विद द अनदर कंट्रीज। इसके साथ देखते हैं एशियन है क्या। एशियन इज एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशियन एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जहाँ पे 10 कंट्री आते हैं, जिसमें से हमने अभी देखा ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम। एस्टेब्लिशमेंट देखते हैं तो 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में बना था, and it's under the Bangkok Declaration. It's formed under the Bangkok Declaration, and its aim, the one vision, one identity, and the one community is the main vision of the organization. एशियन कंट्री में टोटल 662 मिलियन का पॉपुलेशन है, 3.2 ट्रिलियन का जीडीपी है। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की बात करें तो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म मल्टीपल मैकेनिज्म इंक्लूड करता है। एशियन कैसे इवोल्व हुआ है उसके बारे में मल्टीपल चीज़ें अगर आप देखना चाहेंगे यहाँ पे,
एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया 1961, देन द बैंकॉक डिक्लेरेशन 1967 जिसके अंडर ये बना है, फर्स्ट एशियन समिट 1976 में हुआ, ट्रीटी एंड एमिटी कोऑपरेशन 1976 में हुआ, एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 1992 में हुआ, इसके मल्टीपल कंट्री मेंबर्स है, एशियन चार्टर 2008 में आया, एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 2015 में हुआ, आरसीईपी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप 2020 इट्स अ मेंबर ऑफ आरसीईपी। इंडिया को भी आरसीईपी के लिए फोर्स किया गया था, बट इंडिया डिनाइड द आरसीईपी बिकॉज ऑफ द डेयरी सेक्टर। दे वांट कि इंडिया का डेयरी सेक्टर ओपन हो जाना चाहिए, इसीलिए उन्होंने इस पर फोकस किया। इसके साथ देखते हैं, तो टेल मी द आंसर दिस क्वेश्चन, द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एशियन एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन। The Asian Secretariat is located in Jakarta, Indonesia. The Asian Summit is the highest policy-making body of association. India is founding member of ASEAN. This is a wrong statement. India is not a founding member. The India founding member nahi, 2 and 4 are here. 2 and 4 are here. The Asian Charter came into the force 2008. This is a correct statement. So the answer of this question is A. Yes, it's headquartered in the Jakarta, Indonesia. Asian Summit is in the policy making, and fourth statement is also right. थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज इंडिया इज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी होती है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इंडिया हैज सेट एन एग्जांपल फॉर द लायन कंजर्वेशन। यस, इंडिया ने लायन कंजर्वेशन पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल सेट किया। इवन द लायन कंजर्वेशन के साथ अगर मैं बात करूं तो टाइगर कंजर्वेशन पे भी इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट लायंस, ये इंडिया के अच्छे बहुत मेजर अचीवमेंट्स वाले काम रहे। इसके साथ देखते हैं एशियाटिक लायंस के बारे में जानते हैं। तो एशियाटिक लायंस नोन एज द पर्शियन लायंस, और इनको इंडियन लायंस के नाम से भी जाना जाता है। दीज बिलोंग टू स्पीसीज पैंथेरा लियोपर्सिका। इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। इट्स फाउंड एक्सक्लूसिवली इन इंडिया एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। एशियाटिक लायन फाइंड exclusively in India and specifically in the Gir National Park in Gujarat. They mainly found in the Gir National Park in Gujarat, and once widespread across West Asia and the Middle East, the Asian lion now become extinct in these regions. These are not present in the West Asia. These are not present in the Middle East. Now they are only found in India only. इनका करंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो लेटेस्ट सेंसस 2020 में हुआ था गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया में 674 लायंस है स्प्रेड अक्रॉस 30,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। ड्यू टू सस्टेन कंजर्वेशन की वजह से IUCN इनको मूव किया फ्रॉम द एंडेंजर्ड टू द वल्नरेबल इन द रेड लिस्ट। पहले इनको एंडेंजर्ड स्पीसीज में रखा गया था, नाउ दीज आर इन द वल्नरेबल। तो ये अपडेशन भी रिक्वायरमेंट इन 2025 दीज आर अंडर द वल्नरेबल नॉट अंडर द एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो ये आपसे पूछ लिया जाता है कई बार कि किस तरीके के इन एंडेंजर्ड स्पीसीज में है या वल्नरेबल स्पीसीज में है। तो चलिए जानते हैं डिफरेंस बिटवीन द एशियाटिक लाइन एंड द अफ्रीकन लाइन के बारे में डिफरेंसेस देख लेते हैं। इनका साइज थोड़ा स्मॉलर होता है, अफ्रीकन लार्जर होते हैं, शॉर्टर होते हैं, फ्यूलर डेंसर होते हैं। मेल स्टे विद द प्राइड्स, मेल्स लीव प्राइड अनलेस मेटिंग और किल। ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट में मिलते हैं या सवाना में, श्रबलैंड में। तो ये एनवायरमेंट का पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे मिलते हैं। दीज आर एक्सक्लूसिव टू द गिर गुजरात, दीज आर फाउंड इन द सब सहारन अफ्रीका। IUCN स्टेटस देखें तो वल्नरेबल ही है दोनों का। दीज आर प्रोटेक्टेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। एंड इसके अगर बात करते हैं मेजर थ्रेट्स इन ब्रीडिंग डिजीज है, हैबिटेट लॉस है, ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स, दीज आर द मेजर थ्रेट्स टू द एशियाटिक लाइन। तो एशियाटिक लाइन इंडिया में ही मिलता है, गिर फॉरेस्ट में ही मिलता है, और दिस इज अ वल्नरेबल स्पीसीज 2025 में ऐड किया गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के अंदर आता है। गिर के बारे में देखते हैं। गिर नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1965 में बना था। अगर हम देखते हैं तो 60 ईयर्स इसको हो चुके हैं एंड इससे क्वेश्चन आने के चांसेस भी हो जाते हैं। गिरना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं 2008 में बना था, इसको 17 साल हो चुके हैं इन द जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट इन द सौराष्ट्र रीजन्स। ये ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट विद द स्पीसीज लाइक टीक, ढाक, अकेशिया, दीज आर द मेजर स्पीसीज। एशियाटिक लाइन्स यहाँ पे मिलता है, leopards हैं, चिंकारा हैं, चोसिंगा है, दे आर अदर 300 species of the birds are also found into the Gir and the Girnar National Park and the Sanctuary। ये क्वेश्चन देखोगे तो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन 2019 में पूछा गया। एशियाटिक लाइन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। यस, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ये हमने पढ़ा भी है। डबल हम्प्ड कैमल नेचुरली फाउंड इन इंडिया, नो। वन हॉर्न डायनासोर ओनली फाउंड इन इंडिया, नो। So these statements are incorrect. First statement is correct, so the answer of this question is one only। तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम देखते हैं एशियाटिक लाइन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। एंड डबल हम कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, दिस इज इन रॉन्ग स्टेटमेंट। दिस आर फाउंड इन द मंगोलिया, दिस आर फाउंड इन चाइना। तो डबल हम कहाँ कहाँ पे मिलेगा? मंगोलिया में मिलता है, चाइना में मिलता है गोबी डेजर्ट्स में। वन और राइनो तो काफ़ी जगह मिलता है, नेपाल में भी मिलता है वन और भूटान में भी मिलता है। तो ये लोकेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर
कौन से एनिमल्स कहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि एनिमल्स के क्वेश्चन यूपीएससी में रिपीट होते हैं। अगर नेक्स्ट देखते हैं तो माल न्यूट्रिशन क्लेम 63 लाइव्स इन द वीक इन द सूडान बीसीज अल फशर रीजन। सूडान में एक अल फशर रीजन है जहाँ पे अभी न्यूट्रिशन की वजह से काफ़ी सारे डेथ्स हो गए, 63 डेथ्स हो गए। और आपको मैं बता दूं, जो भी रीजन माल नरिशमेंट की वजह से न्यूज में है, जो भी रीजन फूड अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से न्यूज में है, जो भी एथनिक कन्फ्लिक्ट्स की वजह से न्यूज में है, जो भी रीजनल कन्फ्लिक्ट्स की वजह से न्यूज में है, वहाँ से यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछता है। और यूपीएससी के प्राइम टारगेट एरिया रहता है कि यहाँ से तो क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। तो अगर हम एरिया की बात करते हैं, अल फशर रीजन दिस इज इन द सूडान। अल फशर रीजन सूडान में है। सूडान के कैपिटल की बात करें खार्तूम इज द कैपिटल। यहाँ पे एक रीजन है नॉर्थ डार्फर रीजन। तो जो भी एरिया न्यूज में, जैसे अल फशर न्यूज में, उसका नियर बाय एरिया भी यूपीएससी पूछ लेता है। तो नियर बाय यूपीएससी एरिया पूछता है। ये इज नॉट लाइक कि जो महाभारत में हमने देखा था कि अर्जुन को क्या दिख रहा है, मछली की आग दिख रही है। ये हैव टू लुक एट द लार्ज पर्सपेक्टिव हियर। अल फशर की बात करेंगे, अल जनीना की बात करेंगे, जलिंगी की बात करेंगे, नयाला की बात करेंगे, एल्डेन की बात करेंगे, इस डार्फर की बात करेंगे। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर अल फशर, यू हैव टू रिमेंबर एल जनीना, यू हैव टू रिमेंबर जलिंगी, यू हैव टू रिमेंबर नयाला, यू हैव टू रिमेंबर एल्डीन। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे सारे के सारे रीजन, यू हैव टू फोकस ऑन। इसके साथ देखते हैं डार्फर रीजन के बारे में। डार्फर रीजन वेस्टर्न सूडान में है। इसके साथ साथ बिटवीन द कोर्डोफान वदाई एक्सटेंडेड साउथवर्ड टू द अल गजल में एंड द गजेली रिवर, नॉर्थ पार्ट टू द लीबियन डेजर्ट्स में प्रेजेंट है। तो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? बिटवीन द कोर्फोडान वदाई रीजन एक्सटेंडेड साउथवर्ड टू द अल गजल रिवर इन द लीबियन डेजर्ट्स। 4,40,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में इमेंस रोलिंग प्लेन्स, यहाँ पे वोल्केनिक हाईलैंड्स है, मरहा माउंटेन्स, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वोल्केनिक माउंटेन्स, मरहा माउंटेन्स है। डार्फर रीजन इंडिपेंडेंट सल्तनत है अंटिल इट वाज अनेक्स इन द सूडान इन द 1916 में इसको अनेक्स किया गया सूडान से। नाउ इट्स एन इंडिपेंडेंट सल्तनत। द नेम डार्फर इज डिराइव्ड फ्रॉम डार्फर मीनिंग द लैंड ऑफ द फर इन द अरेबिक। तो वहाँ से डिराइव किया गया। तो क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में, चेंचा कहाँ पर है? यूपीएससी का क्वेश्चन है, चेंचा प्रोविंस रशियन फेडरेशन। डार्फर माली में नहीं है, सूडान में, स्वाट वैली इराक में नहीं है। तो ओनली वन इज करेक्ट। चेंचिया इज रशियन फेडरेशन में, सेकंड एंड थर्ड इज अ रॉन्ग वन। डार्फर माली, डार्फर सूडान में है, तो सेकंड गलत है। तो वी कैन एलिमिनेट डायरेक्टली। तो इस क्वेश्चन का देखते हैं। चेंचिया रशियन फेडरेशन में करेक्ट स्टेटमेंट है। डार्फर माली में नहीं है, डार्फर इन द वेस्टर्न सूडान। एंड स्वाट वैली की बात करेंगे, इन द इराक में नहीं है, रीजन खैबर पख्तूनवाला प्रोविंस ऑफ द पाकिस्तान। तो स्वाट वैली कहाँ पे है? पाकिस्तान में, नॉट इन द इराक। तो इस तरीके से जो भी रीजन न्यूज में रहता है यूपीएससी वो रीजन कंटिन्यूसली पूछता रहता है। तो आपको वहाँ पे जिस एरिया में जो न्यूज आई है, जो भी पूछा गया है, जो भी मल्टीपल रीजन्स की वजह से कोई एरिया, कोई पार्टिकुलर एरिया न्यूज में रहा, तो यू हैव टू मेक अ नोट ऑन दैट, सो दैट कि क्वेश्चन अगर उस पर आता है तो आप उसको डायरेक्टली आंसर कर सकें। तो नेक्स्ट आता है कि अर्मेनियन कोड बिटवीन होप एंड डिस्ट्रस्ट आफ्टर कोड विद द अजरबैजान। अभी रिसेंटली ट्रंप ने अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में पीस अकॉर्ड कराया, अर्मेनिया एंड अजरबैजान के बीच में पीस अकॉर्ड कराया। तो इसीलिए हमारे ये रीजन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में एक रीजन है, इसका नाम है नागोर्नो कारकाबाक रीजन। देयर इज अ रीजन बिटवीन द अर्मेनिया एंड अजरबैजान जिसका नाम है नागोर्नो कारकाबाक रीजन। और ये नागोर्नो कारकाबाक रीजन एक कन्फ्लिक्ट रीजन है, और इस पर यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ चुका है। अगर अभी यहाँ पे न्यूज में है अर्मेनिया एंड अजरबैजान, तो यू हैव टू फोकस ऑन द नागोर्नो कारकाबाक region as well। अगर हम देखते हैं तो here is a Nagorno Karabakh region, this red color region you can see Nagorno Karabakh region, and there is a corridor also। यहाँ पे कॉरिडोर भी है जिसको बोला जाता है लाचीन कॉरिडोर। यहाँ पे कॉरिडोर है जिसका नाम है लाचीन कॉरिडोर। सो दिस कॉरिडोर कैन बी आस्क इन द एग्जामिनेशन, द लाचीन कॉरिडोर। लाचीन कॉरिडोर इंपॉर्टेंट बिटवीन नागोर्नो कराबाख रीजन एंड द अर्मेनिया, इसको बोला जाता है लाचीन कॉरिडोर। रीजन के बारे में जान लेते हैं। नागोर्नो कराबाख अर्धकाश के नाम से जाना जाता है बाय द अर्मेनियन लैंडलॉक्ड रीजन है। कारकाबाक रेंज में है एंड देयर इज अ पूरा रिवर इन दिस एरिया। नागोर्नो कारकाबाक स्टे फ्रॉम द स्टेपी से दूर रहते हैं। डेंस फॉरेस्ट, ओक है, हॉर्न बीम है, बीच है। रशियन एम्पायर कोलैप्स होने के बाद ये सारी चीज़ें बनी है। अर्मेनिया है, अजरबैजान है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है, इट्स अ पार्ट ऑफ द अजरबैजान। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज एंड इट्स अ पार्ट ऑफ अजरबैजान। अगर क्वेश्चन आता है तो कहाँ का है? इट्स अ पार्ट ऑफ अजरबैजान। एंड द बाय बट अंटिल रिसेंट मच गवर्न बाय द अनरिकॉग्नाइज्ड नागोर्नो कराबाख रिपब्लिक इसको गवर्न करता है। लेकिन पार्ट किसका? अजरबैजान का। गवर्न कहाँ से होता है? नागोर्नो कराबाख रिपब्लिक से ये
गवर्न होता है। तो दिस इज बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट नागोर्नो कराबाख। ये क्वेश्चन भी अगर आप देखेंगे तो ये भी यूपीएससी में पूछा गया है। नॉर्थ कीवू कहाँ पर है, नागोर्नो कराबाख अगर हम देखें तो दिस इज द अर्मेनिया अजरबैजान। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट इनकरेक्ट। खायरसन इन द जपोरेजिया जपोरेजिया दिस इज इन द यूक्रेन। खैरसन और जपोरेजिया की बात करें तो यूक्रेन में, तो थर्ड भी गलत है, सेकंड भी गलत है। तो इसका आंसर होगा नन, कोई भी सही नहीं है। नॉर्थ कीवू एंड इटूरू दीज आर इन द अर्मेनिया, अजरबैजान में नहीं है, दीज आर इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। नागोर्नो कराबाख की बात करते हैं, दीज आर इन द अर्मेनिया एंड अजरबैजान। खैरसन की बात करते हैं तो खैरसन इन द इजराइल एंड लेबनान के बीच में है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, डी, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे लेक बेलकैश है, लेक बेलकैश। तो लेक बेलकैश स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि जो भी रिवर न्यूज में है वो आपके, या जो भी लेक न्यूज में है वो आपके एग्जाम में आ सकती है, तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो लेक बेलकैश की बात करते हैं। लेक बेलकस कहाँ पे, कजाकिस्तान में है। लेक बेलकस इज इन द कजाकिस्तान। यहाँ से कराताल रिवर्स, इल रिवर्स फ्लो करती हैं। तो लेक बेलकस के बारे में जानते हैं, साउदर्न कजाकिस्तान में है। बालकास अल्कोन बेसिन में पड़ता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक है एशिया का। वेस्टर्न पार्ट फ्रेश वाटर में है, ईस्टर्न पार्ट सैलीन में है। एंड द मेजर इनफ्लो कहाँ है, काताल, आक्सू, लेप्सी। रिवर ओरिजिनेट होती है चाइना के जिनजियांग रीजन से। फिशिंग के लिए, इरिगेशन के लिए, वाटर सप्लाई के लिए दिस है ना इंपॉर्टेंट एरिया। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एंडोहेरिक लेक कौन कौन सी है। एंडोहेरिक लेक की बात करें, सावा लेक एंड द बालकास लेक एंड द एंडोहेरिक लेक, तो ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड द बालकास लेक इज द लार्जेस्ट लेक इन एशिया एंड द 15th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। 15th लार्जेस्ट वर्ल्ड में है और एशिया का तो सबसे बड़ा लेक, लेक बालकाशी आता है। दैट्स बिकम एन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू। एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ऑफिशियल विजिट करेंगे ईरान फॉर द साइट एक्सेस प्लान, लेकिन वो किसी भी न्यूक्लियर साइट पे विजिट नहीं करेंगे। तो चलिए जानते हैं IAEA के बारे में, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में, जो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट हो जाता है। IAEA is a world leading intergovernmental organization for the scientific research and specifically for the nuclear, जैसे कि हम नाम देखेंगे एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, तो न्यूक्लियर एनर्जी के रिलेटेड मेनली है। ये प्रमोट करता है सेफ, सिक्योर एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर साइंस को प्रमोट करता है। IAEA स्टैट्यूट है 23 अक्टूबर 1956 में आया एंड 29 जुलाई 1957 में ये बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर याद रखना आपको वियना में, इट्स हेडक्वार्टर इन वियना एंड डील विद द न्यूक्लियर एनर्जी। टोटल मेंबर की बात करेंगे तो 178 मेंबर स्टेट्स हैं जो इंटरनेशनल मैंडेट एंड क्रेडिबिलिटी देते हैं। इसके लीगल स्टेटस की बात करें, इट्स एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, तो दैट्स आल्सो बिकम इम्पोर्टेंट, इट्स एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम एंड इट्स रिपोर्ट टू द बोथ UNGA को रिपोर्ट करता है एज वेल एज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC और UNGA दोनों को रिपोर्ट करते हैं। दैट्स एन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसके साथ बात करते हैं, इट्स पॉपुलरली रेफर एज द एटम फॉर द पीस डेवलपमेंट के नाम से इसको रेफर किया जाता है। इट्स प्राइमरी गोल इज न्यूक्लियर एनर्जी इज नॉट डाइवर्टेड फॉर द वेपन पर्पज, मीन्स न्यूक्लियर एनर्जी का वेपनाइजेशन नहीं होना चाहिए, दैट्स अ मेन टारगेट ऑफ इट। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जनरल कॉन्फ्रेंस होती है, बोर्ड ऑफ गवर्नर में 35 मेंबर्स होते हैं। दिस इज नॉट अ मच इंपॉर्टेंट एरिया जो आपसे पूछा जा सकता है। सेक्रेटरिएट की बात करते हैं तो लेड बाय डायरेक्टर जनरल, हैंडल इन द IAEA डेली ऑपरेशंस को करता है। इसमें आपके प्रीलिम्स में 2 बार क्वेश्चन आ भी चुका है पहले से। की फंक्शन की बात करते हैं, मॉनिटर करता है, साइट इंस्पेक्शन करता है, एनालिसिस, इंफॉर्मेशन एनालिसिस, पीसफुल यूज के लिए यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है मेनली फॉर द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के लिए। नेशनल, रीजनल एंड इंटीग्रेशन, इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रोल करता है। साइंटिफिक कोऑपरेशन, टेक्निकल एक्सचेंज, यूरेनियम के यूज के कंट्रोल करता है। तो क्वेश्चन की बात करते हैं, इंडिया, दिस वाज क्वेश्चन आस्क्ड इन द 2020 एग्जामिनेशन, व्हाई सम न्यूक्लियर रिएक्टर केप्ट अंडर IAEA के सेफगार्ड में क्यों रखे गए, क्योंकि सम यूज द इंपोर्टेड यूरेनियम, इसीलिए किया गया, क्योंकि जो भी इंपोर्टेड यूरेनियम है उस पर आई कौन रखता है, IAEA रखता है, इसीलिए इसी को अंडर द सेफ गार्ड ऑफ IAEA इसलिए रखा गया बिकॉज इंडिया इम्पोर्ट सम यूरेनियम फॉर द सम ऑफ द न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए यूरेनियम को इम्पोर्ट किया जाता है। आंसर दिस क्वेश्चन इज बी। इस तरीके के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विथ इज द इम्प्लीकेशन रेटिफाइंग एडिशनल प्रोटोकॉल विद द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, द सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स कम अंडर द IAEA सेफगार्ड। जो सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स रहते हैं दैट्स कम्स अंडर द IAEA सेफगार्ड के अंडर आते हैं, इसलिए इसको दिस वाज क्वेश्चन आस्क्ड इन द 2018 एग्जामिनेशन में पूछा गया। तो नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट इज अबाउट सेबी, न्यू इनविट ट्रांजिशन नॉर्म्स आए हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, जिसको इनविट बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, दिस इज नोन एज इनविट, इसमें कुछ नए ट्रांजिशन नॉर्म्स सेबी लेके आने वाला है।
तो नॉर्म्स जब आएंगे तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन इनविट पे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, इनविट पे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इनविट की बात करते हैं, इट्स कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो एनेबल करता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी। इट्स एनेबल द डायरेक्ट investment of money and individual and institutional investors in the infrastructure projects में, जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, सिमिलरली आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। These like the mutual funds in structure can be established with the trust and registered with the SEBI, जो कंपनी SEBI के साथ रजिस्टर्ड है उनमें ही हो सकता है। इनविट में 4 पार्टी हैं, नेमली 4 पार्टीज आते हैं, ट्रस्टी आते हैं, स्पॉन्सर्स आते हैं, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स आते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स आते हैं। ट्रस्टी जो होंगे वो सर्टिफाइड होंगे सेबी के द्वारा एंड हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंस्पेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ इनविट की जितनी भी परफॉर्मेंस होगी उसको इंस्पेक्ट कौन करेगा, सेबी में। सेबी कीप एन आई ऑन द इनविट। इसके साथ देखते हैं रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी है, ये भी पूछा जा चुका है। दीज आर कंपनी दैट ओन द फाइनेंस इनकम प्रोड्यूसिंग रियल इस्टेट्स। ये अलाउ करता है इन्वेस्टर्स टू पूल देयर फंड्स एंड इन्वेस्ट इन द वेरियस रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स में। फंक्शन लाइक a mutual funds for the real estates, does not develop real estate property to resell them। रीसेल के लिए कभी नहीं बनाता है। REIT buy and develop property primarily for operate them as a part of investment portfolio। उनको ऑपरेट करेगा, उनसे जो रिटर्न आएगा उसमें इन्वेस्टमेंट दिया जाएगा। एंड मोस्ट REIT आर द पब्लिक ट्रेडिंग लाइक स्टॉक्स की तरह ट्रेड होते हैं। दे आर हाईली लिक्विड लाइक ट्रेडिशनल रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट्स। नेट इंडिया की बात करते हैं तो इंट्रोड्यूस किया गया था 2014 में, रेगुलेटेड बाय द अगेन सेबी। इनविट इज आल्सो रेगुलेटेड बाय द सेबी and the REIT is also regulated by the SEBI. For a company to qualify as the REIT, the following criteria must be satisfied. So these criteria become important. 90% of the income must be distributed to the investors। जो इन्वेस्टर होंगे REIT में उनको 90% इनकम जाना चाहिए। 80% ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन द प्रॉपर्टी रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए। 80% इन्वेस्टमेंट्स का 10% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट्स मेड इन द रियल इस्टेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जा सकता है 10%। कंपनी मस्ट हैव एन एसेट्स बेस ऑफ 500 करोड़ का आपके पास एसेट्स होना चाहिए, तभी आपको REIT मिल सकता है। REIT एग्रीकल्चर लैंड और वैकेंट लैंड में इन्वेस्ट नहीं करता है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, दे आर नॉट इन्वेस्ट इन द एग्रीकल्चर लैंड इन द vacant land। So this was the question asked in the UPSC 2023 examination। Interest income from the deposit and infrastructure investments distributed to their investor are exempted from tax। The income are not exempted from tax, so this is a wrong statement। पहला statement गलत है, तो the first is wrong, we can directly reach to the answer D। This is an assertion and reason question। और इनका ये ब्यूटी होता है जब भी आपको पता लग गई कौन सा statement गलत, you can directly reach to the answer here। So the answer in this question is D। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे आते हैं, रेयर ब्लू पिंक गिल शटल स्टॉक मशरूम को स्पॉट किया गया तेलंगाना में। और जब भी कोई नया मशरूम आता है, कोई नई वैरायटी आती है, तो वो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो दिस इज अ ब्लू पिंक गिल, दिस इज अ ब्लू पिंक गिल। आपसे सिंपल सा पूछा जाएगा ब्लू पिंक गिल वाज रिसेंटली मेंशन इन द न्यूज, दिस इज रिलेटेड टू लाइक। अगर बात करें मशरूम पे मल्टीपल टाइम पे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, मशरूम के नाम पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसको देखते हैं पिंक गिल मशरूम के बारे में। दिस स्काई ब्लू कलर, साइंटिफिक नेम है तो एंटोलोना होशेस्त्री इज द साइंटिफिक नेम। स्पीसीज ऑफ न्यूजीलैंड का नेटिव स्पीसीज है। इसका अपीयरेंस है जो ब्लू पिंक गिल मशरूम का अपीयरेंस है, कलर डिराइव फ्रॉम द रेयर एजुलियन पिगमेंट से है। स्मॉल है, डिस्टिंक्टिव ब्लू कलर्स है, रेड डिस्टिंक्ट है। हैबिटेट्स देखें फॉरेस्ट का, जितने भी फॉरेस्ट है न्यूजीलैंड में सब मिलता है, अभी तेलंगाना में मिला है। दीज अपीयर ड्यूरिंग द मानसून सीजन के टाइम पे ये अपीयर होते हैं। इसके साथ देखेंगे, दिस इज द क्वेश्चन दैट कैन बी फॉर्म्ड। इट्स ब्लू कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ pigments, yes। It's endemic to the New Zealand, yes। Its spore print in typically pink to salmon color, yes। This all the 3 statements are correct here। नेक्स्ट इज अ नोटिस टू द रिलीजियस एंड द बॉडीज अवर द टाइगर रिजर्व एनक्रोचमेंट में। जो भी टाइगर रिजर्व में एनक्रोचमेंट हुआ रिलीजियस बॉडी ने किया, उनको नोटिस दे दिया गया है। तो एक आरटीआई इन्फॉर्मेशन के अंदर उनको नोटिस दिया गया। तो यहाँ पे टाइगर रिजर्व है, दैट्स बिलीगिरी रंगा स्वामी टाइगर रिजर्व, टेम्पल टाइगर रिजर्व, दैट्स बिकम इम्पोर्टेंट। बियर हिल टाइगर रिजर्व चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में है। द यूनिक बायोजोग्राफिकल हैबिटेट्स है ब्रिज बिटवीन द वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स। इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया था 2011 में, इसको 15 साल हो जाएंगे। इसको बिलगिरी नाम दिया गया व्हाइट रॉकी क्लिफ की वजह से, विच इज होम टू द एंसेंट रंगा स्वामी टेम्पल्स, यहाँ पे मिलता है। इसका वेजिटेशन की बात करें तो स्क्रब है, ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट यहाँ पे मिलते हैं, शोला फॉरेस्ट यहाँ पे मिलते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट यहाँ पे मिलते हैं।
तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाता है किस तरीके का वेजिटेशन है, तो ये आपसे पूछ लिया जाता है। अगर आप लोकेशन देखोगे बिलगिरी रंगा स्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व के बारे में, दिस इज ऑन द बाउंड्री ऑफ द तमिलनाडु एंड कर्नाटका की बाउंड्री पे है, तो ये लोकेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे लोकेटेड, दिस इज बिटवीन द कर्नाटका में लोकेटेड एग्जैक्टली एंड तमिलनाडु की बाउंड्री शेयर करता है। तो ये क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बिलगिरी रंगा हिल्स लोकेटेड इन कॉन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स रिजर्व इन द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, Soliga tribe indigenous community inhabited in this area. It's not a part of Nilgiri Tiger Reserve. So second is not correct. Second correct नहीं है, तो answer of this question will be 1 and 3. So these are today's current affairs. So for the next video, stay tuned. Daily we are coming live on our YouTube channel, The IS Wings. If you are new to the channel, please subscribe to The IS Wings for the daily current affairs.